Okay. Hi everyone. Welcome to another session. So in this session, basically we are going to learn how and what are all ways to insert new contents into the web page dynamically with the help of jQuery. Okay. So I'm just going to open our real-time example for doing the practicals here. So you can see we just saw in the previous session, we saw these many function getter and setters functions, which basically used to set or get the value from the HTML elements from the page. And same with the help of these many functions, we can add some additional elements to our web page, or we can retrieve the elements from the web page. Okay, how we can do that? Let's check. See, we have one normal HTML page. Okay, we do not have anything in the JS file than this ready function. We do not have anything here in the CS. These are the main three files which are sufficient to understand any example from our syllabus. Okay. So append function. So what append function will do? See, let's assume we have one list eval li. Okay. जैसे कि keyboard. Okay. li mouse. Now I want to give the option to my customer. कस्टमर क्या करेगा? उसको अगर और एक एलिमेंट ये लिस्ट के अंदर ऐड करना है रन टाइम, देन user should be able to add the element at the last in this list at runtime. how we can how we can implement that functionality? So obviously हमें एक बटन लगेगा add new product. हम ऐड टू कार्ड करते हैं राइट, फ्लिपकार्ट में जाओ या फिर आप अमेजोन में जाओ, वहां पे आपको ऐड टू कार्ड करके फंक्शनलिटी होता है, वो भी ऑन द फ्लाई होता है। मतलब आपका जो यूजर होता है, आप लोग क्या करते हो, वहां पे जाने के बाद प्रोडक्ट चूज करते हो, ऐड टू कार्ड पे क्लिक करते हो, फिर वो प्रोडक्ट वहां से निकल के कार्ट में चला जाता है, राइट। सेम छोटा सा वैसे ही कुछ टाइप का फंक्शनलिटी हम यहाँ पे करेंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है। ओके, दीज आर द डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स and I want to add one more product into the list. So how we can do that? यहाँ पे जैसे ही इस बटन का नाम देता हूँ मैं id btn add. ओके, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ओके, इवेंट इज व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन। सो बटन नेम इज दिस, id दिया था मैंने राइट, तो id मीन्स हैश। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, सो क्या होना चाहिए? इवेंट ऐसे लिखना है। ओके, आपको पता है। तो दिस इज वेरी बेसिक सिंटैक्स। यहाँ पे सिलेक्टर इवेंट फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वो तभी जाके एग्जीक्यूट होने वाला है जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, इस टाइप में। ओके, अभी btn डॉट एड, अगर किसी ने उस बटन पे क्लिक किया तो btn एड डॉट क्लिक वेर प्रोडक्ट इक्वल टू एक प्रॉम्प्ट करके बॉक्स है। प्रॉम्प्ट बॉक्स क्या करता है? आपको रन टाइम इनपुट्स लेने में मदद करता है। कहाँ से लेने में? यूजर से रन टाइम इनपुट्स लेने में मदद करता है। तो प्रॉम्प्ट इंटर प्रोडक्ट नेम. Okay, so user will add the product name here. As soon as I got the product name from the user, I want to add this product name at the end of this list, right? So इस list को मैं कुछ नाम देता हूँ, जैसे कि LST products, ऐसा कुछ मैंने नाम दिया। ओके, आई वांट टू ऐड न्यूली एडेड एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सो हाउ आई कैन डू दैट? आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल select where I want to add. I want to add element inside this list, right? So what I will do, hash lst products dot append नाम का function है। Okay, I will use this function append, and then inside this function we can basically add this product like this. That's it. See, very simple. How to use append function, where to use append function. Simple. क्या करना है? Whenever I will click on this button, then I will display one pop-up message to the user. User will enter some name. That name I will get inside this variable, and whatever name I got here, that I just wanted to append to this list. Append means at the end of the list. Okay, let's see the output.
ओके, बस यहाँ पे जाना है, उसको डबल क्लिक करना है। सी वी हैव अ लिस्ट, कीबोर्ड, माउस, एक मैंने HR डाला था जस्ट फॉर द डिवाइडेशन पर्पस, एंड ऐड न्यू प्रोडक्ट। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्या पूछ रहा है ये, इंटर अ प्रोडक्ट नेम, फिर मैंने डाला लेट्स से हेडफोन्स। ओके, ओके, सी हमें सबसे लास्ट में एक हेडफोन्स नाम का प्रोडक्ट ऐड हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे आपने अगर ऑब्जर्व किया ना, तो ये प्रोडक्ट एज अ टेक्स्ट ऐड हुआ है। देखो यहाँ पे एज अ टेक्स्ट ऐड हुआ है, LI एलिमेंट के अंदर नहीं आया हुआ। ओके, तो आपको LI एलिमेंट के अंदर अगर डालना है, देन यू कैन बेसिकली ऐड LI लाइक दिस, LI प्लस प्लस LI क्लोज। ओके, अभी देखो क्या होता है ना। So this append function also supports the HTML content, not only your normal text but also it supports the HTML content as well. तो ये क्या करेगा, अभी देखो यहाँ पे एक केला था, दूसरा था, सबसे लास्ट में इसने ये वाला ऐड कर दिया हेडफोन। और मुझे और एक एलिमेंट ऐड करना है, फिर मैं इसको क्लिक करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लैपटॉप। ओके, ओके, देखो उस लिस्ट के सबसे आखिरी में वो ऐड होते जा रहा है, होते जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस append फंक्शन। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज append फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फंक्शन। नाउ सडनली रिक्वायरमेंट गॉट चेंज। ओके, उन्होंने ऐसा बोला कि जब भी मैं नया एलिमेंट ऐड करूंगा, दैट शुड बी ऐड एट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, मतलब ऊपर ऐड होना चाहिए, नीचे नहीं। दैट इज द रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपेंड की जगह पे लिखना है प्रीपेंड, इतना ही चेंज, दैट्स इट। ओके, जैसे आप प्रीपेंड लिखोगे, स्पेलिंग देख लेना एक बार, डबल पी नहीं है। ओके, अभी रिफ्रेश करो, फिर ऐड प्रोडक्ट करो, यहाँ पे मैंने किया अभी कंप्यूटर। ओके, कहाँ पे ऐड हुआ देखो, सबसे ऊपर ऐड हुआ। तो दिस इज योर प्रीपेंड फंक्शन। प्रीपेंड फंक्शन विल ऐड द न्यूली added HTML content at the beginning of the list। ओके, जैसे कि ये हमने क्या लिया था, LST प्रोडक्ट, ये आपका सिलेक्टर है, राइट। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे 1 2 एंड 3, इसके पहले वो ऐड करेगा प्रीपेड। ओके, अपेंड क्या करेगा, 1 2 एंड 3 जो एलिमेंट्स है इसके नीचे वो ऐड करेगा, दैट इज अपेंड। गॉट इट। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड प्रीपेड। अभी क्विकली हम HTML का फिर से देख लेते हैं, ऑलरेडी हमने देखा था, लेकिन हमें फिर से देखना है। अभी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मान लो जो डिफॉल्ट एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख के रखा है, नो प्रोडक्ट्स एडेड, ऐसा कुछ मैंने लिख के रखा है, राइट। नो प्रोडक्ट्स एडेड, यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं है, ऐसा हमें मैसेज दिखाना था। सो वो हमने एज अ एक LI एलिमेंट ऐड करके रखा है, नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, या फिर एडेड टू द कार्ट, है ना, ऐसा कुछ, एडेड टू द कार्ट। ओके, ऐसा कुछ हमें मैसेज दिखाना है। अभी जब मैं नया प्रोडक्ट ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया माउस। ओके, ओके करने के बाद क्या होना चाहिए था, जो नो प्रोडक्ट्स एडेड नाम का मैसेज था वो निकल जाना चाहिए, और उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, माउस आना चाहिए। गॉट इट। सो आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, एंड नया एलिमेंट जब आप ऐड करोगे उसको उसकी जगह पे रिप्लेस करना है। इन शॉर्ट आपको रिप्लेस करना है। ओके, अगर आपको रिप्लेस करना है, जो भी एलिमेंट्स आपके इसके अंदर है, LST प्रोडक्ट के अंदर जितने भी HTML के एलिमेंट्स ऑलरेडी है, उनको अगर आपको रिप्लेस करना है विद द न्यू कंटेंट, यू कैन गो विद द HTML। HTML will simply replace the content. It will not care about शुरू में डालना है या फिर लास्ट में डालना है। It will not care about that sequence. It will simply replace the existing content with the new content. That's it. देखो यहाँ पे मैंने माउस इंटर किया, ओके किया, क्या हो गया, जो पुराने कंटेंट थे वो निकल गए, उसके जगह पे नए कंटेंट्स आ गए। तो दिस इज द यूज ऑफ HTML फंक्शन। HTML फंक्शन also supports the HTML टैग्स। जैसे कि आपने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा, हमने LI नाम का टैग भी डाला हुआ है along with the product name, so that LI tag will get parsed before displaying into the web page। Okay, so that is the beauty of using the HTML function। नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा,
वो बस प्लेन टेक्स्ट ही डालता है। मतलब आपने अगर HTML के जगह पे यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर लिया, ओके, और फिर आप क्या कर रहे हो, नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो, इट विल नॉट पार्स योर HTML कंटेंट। ये क्या करेगा, जो भी HTML के कंटेंट आपने डाले थे एज अ टेक्स्ट पैरामीटर, वो उनको एज इट इज दिखा देगा वेब पेज। आप देख रहे हो यहाँ पे एल आई ऐसे कैसे दिख रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू पार्स योर HTML कंटेंट्स। ओके, सो टेक्स्ट जो फंक्शन है उसका मीनिंग ही वही है, वट एवर यू विल एड इनसाइड द टेक्स्ट फंक्शन दैट विल गेट डिस्प्ले एज इट इज इनटू द वेब पेज। अगर आपको उसको पार्स करना है फिर डिस्प्ले करना है, देन यू कैन गो विद द HTML फंक्शन। और अगर आपने नोटिस किया रहेगा, टेक्स्ट फंक्शन और HTML फंक्शन दोनों के दोनों फंक्शन क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको रिप्लेस करके वो ऐड करते हैं। वो उसमें कुछ अपेंड या प्रिपेंड करते नहीं बैठेंगे, वो बस रिप्लेस कर देंगे जो भी है। डू नॉट केयर अबाउट इट, रिमूव दैट, ऐड द न्यू कंटेंट, दैट्स इट। सो दैट इज योर टेक्स्ट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अपेंड फंक्शन, प्रिपेंड फंक्शन, HTML फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है बिफोर एंड आफ्टर। अभी कभी कभी कैसा होता है कि ये जो लिस्ट है इसके बाद में, लिस्ट के यूएल है राइट, यूएल के बाद में कौन है, यूएल नाम का जो टैग है उसके बाद कौन है, HR टैग है, उसके बाद कौन है, बटन टैग। सो इफ यू वांट टू ऐड द न्यू कंटेंट आफ्टर द यूएल या फिर बिफोर द यूएल, देन यू कैन गो विद दिस टू फंक्शन, आफ्टर एंड बिफोर। गॉट इट। मतलब इफ यू वांट टू ऐड आफ्टर द यूएल, अभी तक जो भी हो रहा था ना वो यूएल के अंदर हो रहा था। मतलब यूएल के अंदर एलआई एलिमेंट आपको शुरू में डालना है, लास्ट में डालना है, या फिर उसको रिप्लेस करना है, दैट एवरीथिंग वाज हैपनिंग इनसाइड द यूएल टैग। यूएल के अंदर मतलब यूएल टैग ओपनिंग और यूएल टैग क्लोजिंग जो है उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स के साथ हम अभी तक मैनिपुलेशन कर पा रहे थे। लेकिन अगर आपको इस यूएल टैग के पहले और यूएल टैग के बाद में इफ यू वांट टू ऐड सम न्यू कंटेंट यू कैन डू दैट। सो लेट्स से अभी मैंने ऐसा किया, इस यूएल के बाद पहले डालना है राइट, डालना है राइट, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं आफ्टर, सॉरी बिफोर, एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज बिफोर यूएल। अभी ये जो मेरा नया कंटेंट रहेगा ना, वट एवर, ये डजेंट मैटर एक्चुअली, लेट मी जस्ट कमेंट दैट कोड। ओके, अभी क्या हो जाएगा देखो, कहाँ पे गया वो, जब मैं ईवेल की क्लिक किया कहाँ पे ऐड हो रहा है देखो, ईवेल से, ये ईवेल से पहले, दिस इज बिफोर ईवेल, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोंट लुक इनटू दिस आउटपुट, ओके, दिस इज नॉट फॉर यू। यस, यहाँ पे देखो डॉम, दिस इज योर डॉम, ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे जैसे जैसे कंटेंट प्लेस होते जाएंगे वैसे वैसे आपका आउटपुट दिखता जाएगा। तो यू हैव टू मॉनिटर दिस वन। ओके, आपने अगर इस बटन पे क्लिक किया तो इस यूएल से पहले वो ऐड हो रहा है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ आफ्टर। आफ्टर अगर मैंने किया तो ये जो यूएल था और HR, ये यूएल के बाद में और HR से पहले जो स्पेस है वहां पे वो ऐड होने वाला है देखो, यूएल के बाद HR से पहले। फिर से किया, अभी देखो यूएल के बाद HR से पहले। so this is how it will basically add the new element after the current element। ओके, आफ्टर मतलब जहां पे करंट एलिमेंट है, जिस करंट एलिमेंट का आपने सिलेक्टर दिया है, ये सिलेक्टर जिसका भी आपने सिलेक्टर दिया है उसके बाद में वो ऐड करने वाला है। कभी कभी होता है ना, आपके आपके पेज में आपको बोला जाता है कि इसके बाद में डायनामिकली एक नया एलिमेंट डालो, तो उस टाइम पे आपको आफ्टर फंक्शन यूज करना। आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू यूज बिफोर एंड व्हेन टू यूज आफ्टर। नेक्स्ट फंक्शन है रैप। रैप फंक्शन क्या करता है, आई थिंक दिस फंक्शन विल ऐड वन पैरेंट एलिमेंट टू द करंट एलिमेंट। देखते हैं क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने रैप फंक्शन लिख दिया, रैप, आई वांट टू रैप विथ डिवीजन, ऐसा कुछ। ओके, अभी ये क्या करेगा, डिवीजन उसका क्लास, उसको मैं क्लास देता हूँ कुछ डिवी पैरेंट। ओके, अभी मुझे क्या करना है, ये जो यूएल है ये किसके अंदर है, यहाँ पे आप पहले हायरार्की पढ़ लो। देखो HTML टैग है, उसके अंदर दो टैग है, कौन से, हेड एंड बॉडी। देन वी आर हैविंग, अगर मैंने बॉडी टैग ओपन किया उसके अंदर कौन से टैग है, UL, HR, बटन। अगर मैंने UL ओपन किया उसके अंदर कौन से टैग है, LI।
li ओपन किया, उसके अंदर टैग है क्या? नहीं, इसमें डायरेक्ट कंटेंट है। ओके, तो दिस इज योर हायरार्की। अभी मुझे क्या करना है, इस बॉडी के अंदर जो यूएल है उसको एक ड्यू के अंदर डालना है डायनामिकली विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। मैं सीधा जाके यहाँ पे डाल सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट इन HTML. At the runtime, upon some user interaction, I want to add this UL inside one division. Okay, how I can do that? You can use wrap function. देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक div आ गया with div parent, उसके अंदर UL चला गया। गॉट इट। फिर से मैंने क्लिक किया, क्या हुआ, एक div के अंदर और एक div आया, उसके अंदर UL चला गया। मतलब दिस wrap function will basically add one more parent to the current element. Whatever parent name and class name you will mention here, that will be the parent of your current element. Automatically it will wrap your element with inside that parent. Okay, so this is your wrap function. So by using this function you can insert the new content inside the web page. Now let's understand how we can remove the contents, remove the elements from the web page. अभी तक हमने क्या पढ़ा, how we can add, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ऐड करने के लिए हमने देखा था अपेंड नाम का सबसे शुरू में। ओके, और अपेंड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये प्रोडक्ट देखो अभी क्या होता है, ऐड किया ए, देन बी, देन सी। अभी क्या हो रहा है, कंटेंट ऐड हो रहा है ना, अपने को एल आई ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला एल आई, एल आई। ओके, अभी देखो ए, देन बी, देन सी। ओके, एज अ न्यू एलिमेंट वो ऐड हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड। नाउ आई वांटेड टू रिमूव। ओके, आई वांटेड टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, आई वांटेड टू रिमूव समथिंग। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक इमेज लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक इमेज रहेगा IMG SRC, यहाँ पे इमेज का पाथ आ जाएगा। ओके, उसमें इमेज को हम डालेंगे, मेरा फेवरेट वाला डाल देते हैं। ओके, ये इमेज है, इसको हमें डालना है। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, गो हियर, यहाँ पे ऐड कर दो। एंड देन we'll have one more button, remove image, इसका नाम रहेगा btn remove। और यहाँ पे जाएंगे, उसका नाम यहाँ पे चेंज कर देंगे, सिलेक्ट remove। ओके, अभी देखो आउटपुट क्या है, अपने पास एक इमेज आ गया। राइट, नाउ आई वांटेड टू रिमूव दिस इमेज ऑन क्लिकिंग ऑफ दिस बटन। आप बोलोगे कि ऐसा कभी फंक्शनलिटी रहता है क्या, रियल टाइम एग्जांपल क्या होगा इसके लिए? देखो, आपके पास बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा एक ग्रिड रहता है। ओके, ग्रिड मतलब एक टेबल रहता है, उस टेबल के राइट साइड में डिलीट का बटन होता है। अगर आपको करंट रो को डिलीट करना है तो उस बटन पे क्लिक करो, है ना। उस पे क्लिक करने के बाद जो रो रहती है उस बटन के रिस्पेक्टिव में, वो रो पूरा डिलीट हो जाता है। सो डिलीट हो जाता है मतलब कि यूआई में से वो निकल जाता है। सो ऑन क्लिकिंग ऑफ दैट डिलीट बटन वी यूज टू रिमूव दैट रो फ्रॉम द डॉम, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। जैसे मैं रिमूव इमेज बोलूंगा, इसमें क्या करना चाहिए, ये इमेज रिमूव कर देनी चाहिए। अभी कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, अभी बस एरर आ रही है। देखो, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड एंड ऑल, अभी बस एरर आ रही है 10 बार, 10 टाइम्स दिस एरर ऑफर्स। ओके, नाउ आई वांट टू रिमूव दिस image on clicking of this button. How I can do that? Go here, first of all analyze करो क्या है अपने पास। अपने पास है एक इमेज, उसके अंदर एक HR, एक बटन। बटन पे क्लिक करने के बाद इमेज डिलीट करनी। ओके, सो बटन पे क्लिक करने के बाद क्या डिलीट करनी है, इमेज क्या करनी है, डिलीट यानी रिमूव करनी। दैट्स इट, जो आप बोलोगे वैसे कोड करो। देखो, कोड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बटन पे क्लिक करने के बाद इमेज को रिमूव करो, ऐसा कोड है ना। देखो एक बार, हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस रिमूव बटन।
गॉट इट। अभी जैसे हमने रैप फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही अनरैप फंक्शन भी है। ये एग्जैक्टली उसका उल्टा कॉपी है। मतलब मैं बताता हूँ आपको। ऐसा मान लो, अपना पुराना एग्जांपल में लाता हूँ वापिस। ये यूएल है। इस यूएल का एक पेरेंट था, जैसे कि क्लास टीवी पेरेंट। ऐसा उसका ऑलरेडी पेरेंट था। ओके, यूएल का। ओके। और एक बटन है, उसका नाम है अनरैप। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा, इसको मैं जेनरिक नाम देता हूँ, पीटीएन नाम देता हूँ बस, है ना। जिस इसको अगर मैंने क्लिक किया, तो क्या होना चाहिए? ये जो पेरेंट का ड्यू है, ये वाला डीवी पेरेंट, इसके अंदर ईमेल है, राइट। तो मुझे क्या करना है, इसका जो पेरेंट है उसको निकाल देना है, और ये ईमेल बॉडी के अंदर आना चाहिए डायरेक्टली, ऐसा। ओके, सो बेसिकली आई वांट टू रिमूव द पेरेंट डिवीजन ऑफ द करंट डिवीजन, करंट एलिमेंट। सो ऑन क्लिकिंग ऑफ दिस बटन होना चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, अगर किसी ने बटन को क्लिक किया, देन ये जो एलएसटी प्रोडक्ट है, एलएसटी प्रोडक्ट है, उसको अनरैप करो। अनरैप करो। क्या अनरैप करना है? आई वॉन्ट टू रिमूव इट्स पेरेंट, लाइक ड्यू, जो भी रहेगा उसको रिमूव करना है। ओके, आई थिंक उसमें कुछ पैरामीटर नहीं भी दे तो चलेगा, आई एम नॉट श्योर, लेट्स चेक। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? अरे, ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे ही हो गया ना, इसलिए लेट्स गो बैक। बटन पे क्लिक किया, तो इस एलएसटी प्रोडक्ट को अनरैप करो, ऐसा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अनरैप मतलब क्या? इसका जो पेरेंट है, जिस एलएसटी प्रोडक्ट्स का जो पेरेंट है, वो डिलीट हो जाएगा। देखो, हो गया। सीधा वो एलएसटी प्रोडक्ट्स अभी बॉडी के अंदर आ गया। गॉट इट। So this is how you can basically do the reverse action of the wrap function. ओके। रिमूव भी क्या है? उल्टा एक्शन है ना अपेंड का। अपेंड ऐड करता है, रिमूव डिलीट करता है। रिमूव लास्ट एलिमेंट, रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ऐसा आपको एक असाइनमेंट है, करके दिखाओ। मतलब देखो, ये लिस्ट है। यहाँ पे कुछ मैं टेम्पररी डाल के देता हूँ, कीबोर्ड, कीबोर्ड। ओके, ऐड, बीटीएन ऐड। ये हमारा सिंपल एग्जांपल है। जैसे ही कोई बीटीएन ऐड पे क्लिक करेगा, देन आई वांट टू ऐड न्यू एलिमेंट, जैसे कि प्रोडक्ट या फिर आइटम इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ओके, इंटर नेम। जो भी नेम डालेगा वो सीधा इस वेरिएबल में आएगा, और उस वेरिएबल को हमें क्या करना है, वो एलएसटी प्रोडक्ट्स के अंदर अपेंड करना है, राइट। नाउ योर चैलेंज इज, यू हैव टू इंट्रोड्यूस वन मोर बटन हियर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माउस, ये क्या हो रहा है, इसके नीचे ऐड होना चाहिए था, नहीं हुआ क्योंकि हैश नहीं डाला। ओके, हैश इज नथिंग बट यूर आईडी। यहाँ पे माउस मैंने ओके किया, यहाँ पे ऐड हो गया। दिस शुड बी ऐड एज एन लिस्ट आइटम। सो एल आई, ओके, एल आई अगर डालोगे तो लिस्ट आइटम ऐड होगा आपके इसमें। ओके, प्लस सिंबल क्यों दिया है मैंने? आई वॉन्ट टू ज्वाइन द मल्टीपल स्ट्रिंग टूगेदर। ओके, देन अभी आपको रिफ्रेश करो, ऐड करो, यहाँ पे बोलो माउस। Okay. Okay. So this is how you can basically add the elements. Your assignment is, you have to introduce one more button here, that is your remove. यहाँ पे आपको remove बटन डालना है। ओके, btn remove। अभी मैं इसके आगे आपको बताने नहीं वाला है। ओके, आपको क्या करना है, ऐड बटन पे ऐड करना है ऐसे, और रिमूव बटन पे क्या करना है, आपको लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करना है, जैसे कि कीबोर्ड ए एंड बी। जैसे मैं रिमूव बोलूंगा, वो लास्ट वाला एलिमेंट निकल जाना चाहिए। फिर से मैंने रिमूव किया, ये निकल जाना चाहिए। फिर से रिमूव किया, ये निकल जाना चाहिए। फिर ये बटन क्लिक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके अंदर अभी एलिमेंट ही नहीं है ना। तो इसके अंदर अगर एलिमेंट है ही नहीं, तो दिस बटन शुड नॉट बी क्लिकेबल। दिस इज योर असाइनमेंट। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। ओके।
नेक्स्ट इज एम्प्टी। एम्प्टी क्या करता है, ये उल्टा करेगा। मतलब रैप फंक्शन, अनरैप फंक्शन क्या करता है, उसका पेरेंट डिलीट करता है, ओके, और ये चाइल्ड ऊपर आ जाता है। एम्प्टी क्या करेगा, इससे उल्टा ऑपरेशन, मतलब पेरेंट को वैसे ही रहने देगा, लेकिन इसके अंदर वाले चाइल्ड्स को डिलीट कर देगा। देखो, अभी हम वापिस जाएंगे, यहाँ पे देखो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड है। जैसे मैं एम्प्टी बटन को क्लिक करूंगा ना, इट विल बेसिकली डिलीट ऑल द चाइल्ड एलिमेंट्स, है ना। एम्प्टी, तो btn एम्प्टी को अगर किसी ने क्लिक किया, देन ये जो पेरेंट है, ये वाला पेरेंट, इसको एम्प्टी करो, इस टाइप। ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड एम्प्टी, तो आपको बोलते आना चाहिए। देखो अभी रिफ्रेश करो, देखो इस एलएसटी प्रोडक्ट के अंदर क्या है, सॉरी, डीबी पेरेंट के अंदर क्या है, एलएसटी प्रोडक्ट नाम की यूएल है, यूएल के अंदर एल आई। जैसे ही मैं एम्प्टी बटन को क्लिक करूंगा, तो क्या होना चाहिए था, ये रिमूव हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखते। डीबी पेरेंट क्लास है, राइट, हमने उसको आईडी दिया हुआ है, तो इट इज नॉट आईडी, इट इज अ क्लास, सो जस्ट यूज पीरियड एज अ सिलेक्टर, फुल स्टॉप, डॉट, वो आपको यूज करना है। अभी देखो, डीबी पेरेंट के अंदर क्या है, यूएल है, यूएल के अंदर क्या है, एल आई है। मैंने सिलेक्टर कौन सा दिया है, डीबी पेरेंट, मतलब एम्प्टी को क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, डीबी पेरेंट एम्प्टी हो जाएगा। देखो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, सब कुछ निकाल दिया, so that is your empty. Okay, empty function means it will remove all the child elements from your web page, that is your empty function. And remove attr मतलब अगर आपका कुछ एट्रीब्यूट रिमूव करना है, जैसे कि लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इमेज ही डाल देते हैं, ओके, इमेज से जल्दी से आपको समझ में आएगा। मान लो आपके पास एक इमेज है यहाँ पे, IMG SRC, वो मिकी माउस वाला, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे इमेज डाल दिया मैंने। उसके बाद हमें क्या करना है, रन टाइम, हमने इमेज, इमेज कैसे चेंज करनी है, रन टाइम वो हमने देखा है, राइट। चेंज इमेज नाम का बटन डाला था, उसको क्लिक करने के बाद ये इमेज चेंज होता था, राइट। हाउ इट वाज चेंजिंग, पहले वो वापस देखते हैं वो एग्जांपल, तो आपको थोड़ा रिकॉल हो जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस हियर इज, ओके। अपने पास एक बटन है, चेंज इमेज करके, ओके, मैं बटन अभी बार बार डाल देता हूँ, तो आई डोंट हैव टू रिवोक अगेन। चेंज IMG इमेज, ओके, BTN चेंज IMG, ये बटन, ओके। अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा चेंज इमेज पे, तो ये मिकी माउस ऐसे कर रहा है ना, उसने बाद में ऐसे करना चाहिए, ओके। चेंज इमेज पे क्लिक करने के पहले वो ऐसे करेगा, बाद में फिर ऐसे करेगा, ओके। तो इसका क्या पाथ है, कॉपी इमेज एड्रेस, ये पाथ हमें कॉपी करके रखना है, ओके, समवेयर। एंड देन क्या है, यहाँ पे कोड में पढ़ना है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद इस इमेज का SRC में, अगर मैंने ये पाथ मैंने रन टाइम डाल दिया ऐसा, तो ये ऐसे कर रहा था, रिफ्रेश करने के बाद वो ऐसे करने वाला है। अरे बड़ा है शायद, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ऐड सम हाइट, फिक्स हाइट, 200 पिक्सल इज फाइन, रिफ्रेश, यस, ओके। सो ऑब्वियसली अगर मैंने उसका पाथ चेंज कर दिया रन टाइम, तो क्या हो जाएगा, इट विल बेसिकली वर्क। ये पुराना पाथ था, ये नया पाथ है, सॉरी नया पाथ मैं बाद में रन टाइम डालने वाला हूँ। जब भी किसी ने इस बटन पे क्लिक किया, तो मुझे इस बटन का आईडी लेना है, उस आईडी को लेके, जब मैं ऐसे बोलूंगा बटन को किसी ने क्लिक किया, देन इमेज का एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन हमने पढ़ा था, उसमें SRC नाम का एट्रीब्यूट हमने दिया था, एंड देन वी कैन बेसिकली गिव द न्यू पाथ हियर, कॉपी इमेज एड्रेस, इसके अंदर हम नया पाथ दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी ने अगर इस बटन इमेज को क्लिक किया, देन इमेज टैग का जो SRC नाम का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू चेंज कर दो, ये वाली नई वैल्यू है और ये वाली पुरानी वैल्यू। इससे क्या हो जाएगा, हमारा इमेज रन टाइम चेंज हो जाएगा। देखो अभी मिकी माउस ऐसे कर रहा है, इसको क्लिक करने के बाद वो ऐसे करेगा, ठीक है। तो इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ATTR function. ATTR function will help you to change the attribute value runtime. Okay. Now our main topic is how to remove the attribute. मुझे क्या करना है,
इमेज को चेंज नहीं करना है, मुझे एट्रीब्यूट ही निकाल देना है, एसआर से एट्रीब्यूट निकाल देना है। और इमेज में ना एक अल्ट करके एट्रीब्यूट रहता है, अल्ट। ये क्या होता है, अल्ट क्या होता है, ये आपको तब दिखता है जब ये पाथ में कुछ गड़बड़ है। मतलब ये पाथ अगर कुछ मैंने ऐसा गलत डाल दिया, रिफ्रेश किया, तो क्या करता है, ऐसा नो इमेज करके अल्ट टेक्स्ट दिखाता है। अल्ट टेक्स्ट, अल्ट मतलब अल्टरनेटिव ऑफ योर इमेज, इफ इमेज नॉट विजिबल इट विल बी विजिबल, ऐसा अल्ट, नो इमेज। ओके, तो पाथ अभी तो मैं सही सही डाल देता हूँ, इमेज दिख रहा है मेरा। अभी मैं रिमूव नाम का एक बटन है, उस, सॉरी नॉट रिमूव, आई वांट टू रिमूव एट्रीब्यूट, यस, रिमूव नाम का बटन है। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, मुझे एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट ही निकाल देना है। हाउ आई कैन रिमूव दैट, सो बीटीएन रिमूव को किसी ने क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे ऐसा कोड वापस लिखूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई अगर बीटीएन रिमूव को किसी ने क्लिक किया तो रिमूव एटीटीआर, रिमूव एटीटीआर एसआरसी, ये एट्रीब्यूट रिमूव कर दो। ऐसा मैंने यहाँ पे कोड लिखना है। देखो, यहाँ पे इमेज है, इमेज के अंदर दो एट्रीब्यूट है, अल्ट नाम का, एसआरसी नाम का। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट निकल गया। जैसे ही वो एट्रीब्यूट निकल गया, यहाँ से इमेज निकल गई, और उसके अलावा मतलब उसके अल्टरनेटिव में उसने क्या किया, अल्ट नाम के टेक्स्ट दिखा दी। गॉट इट। so by using the remove attribute function we can basically remove the attribute from the HTML element. Got it? So this is how you can add new element into the web page. This is how you can remove the existing elements from the web page. Okay. Now और तीन क्लासेस है, तीन फंक्शन है, वो भी हम क्विकली समझ लेते क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये फंक्शन आपको बहुत जगह पे यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास। ओके। हम्म, आपके पास मान लो एक क्लास है डॉट बॉर्डर करके, ये क्या करता है, ये आपके इमेज को एक फ्रेम बना के देता है, जैसे कि बॉर्डर, सॉलिड, थिन, ग्रे। ओके, या फिर यहाँ पे ना ऐसे कुछ प्रॉपर्टी रहती है बॉर्डर के अच्छे से दिखने के लिए, डैश करके रहता है ना, इस टाइप में। उसके बाद पैडिंग 0, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये बॉर्डर आ जाएगा, कब आएगा, जब आपके इमेज को बॉर्डर नाम का क्लास रहेगा तभी बॉर्डर आएगा। ये जो बॉर्डर नाम का क्लास है, देखो अभी बॉर्डर दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। अगर ये क्लास मैंने इमेज को यहाँ पे ऐड कर दिया ऐसा, और रिफ्रेश किया, अभी बॉर्डर आ गया। लेकिन आपका कस्टमर क्या बोल रहा है कि दिस बॉर्डर शुड बी ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब यूजर को चूज करने दो, इमेज का बॉर्डर डालना है या फिर नहीं डालना है, दैट यूजर विल चूज, कस्टमर विल चूज। तो मैंने यहाँ पे एक बटन डाल दिया, ऐड बॉर्डर, और एक बटन डाल दिया, रिमूव बॉर्डर। ओके, यहाँ पे मैं ऐड बॉर्डर नाम का उसका नाम देता हूँ, इसका नाम देता हूँ रिमूव। ओके, देखो रिक्वायरमेंट पहले समझ लो। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एक इमेज है, उस इमेज को बॉर्डर डालना है तो मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा, वो बॉर्डर निकालना है तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा। ये रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई। अभी अगर बॉर्डर डालना है तो हमें क्या कोड करना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि बॉर्डर डैश थीन ग्रे। ओके, ग्रे लिखो, रेड लिखो, जो भी आपको लिखना है। ओके, उसके बाद पैडिंग डालना है थोड़ा सा, मतलब वो ठीक से दिखेगा। ओके, लेकिन ये तभी दिखेगा जब मैं इस इमेज को एक क्लास डालूंगा, क्लास बॉर्डर। जब मैं ऐसा क्लास डालूंगा तब जाके वो बॉर्डर आने वाले, राइट। तो ये क्लास मैंने डाल दिया, बाद में फिर आपका कस्टम क्लाइंट आया, उसने बोला कि मैंने बोला था कि ये इट शुड नॉट बी एडेड बाय डिफॉल्ट।
बाय डिफॉल्ट आपकी इमेज ऐसी रहेगी, ऐसी। लेकिन किसी ने इस बटन को क्लिक किया तो डायनामिकली वो क्लास यहाँ पे आना चाहिए। अगर किसी को बॉर्डर चाहिए वो क्लिक करेगा, नहीं चाहिए तो वो क्लिक नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो डायनामिकली वो क्लास यहाँ पे कैसे लाओगे, इमेज में वो क्लास डायनामिकली कैसे ऐड करोगे? तो वही हमें पढ़ना है। क्या करना है, जब भी मैं ऐड बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो इमेज को ऐड क्लास नाम का फंक्शन है, कौन सा क्लास ऐड करना है, बॉर्डर नाम। दैट्स इट, इतना ही कोड है। देखो अभी यहाँ पे बॉर्डर है क्या, नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हो गया, बॉर्डर आ गया। हाउ इट कैम, बिकॉज दिस बॉर्डर नाम का जो क्लास है ये रन टाइम आता है। देखो यहाँ पे अभी क्लास है क्या, बॉर्डर नाम का नहीं है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लास बॉर्डर आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड अ न्यू क्लास डायनामिकली। ओके, आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐड क्लास फंक्शन। नाउ इसका ही उल्टा है रिमूव क्लास। मतलब क्लाइंट ने क्या बोला है कि भाई ठीक है बॉर्डर ऐड किया, गुड, ओके। इसको बार बार क्लिक करोगे तो अगर क्लास ऑलरेडी एडेड है तो वो 10 बार ऐड नहीं होने वाला है, वो एक ही बार ऐड होगा। लेकिन अभी कोड क्या करना है, उसने बोला कि ठीक है ये बॉर्डर नहीं चाहिए, इसको क्लिक करो। रिमूव बॉर्डर को क्लिक करने के बाद ये क्लास निकल जाना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द एग्जिस्टिंग क्लास, how you can do that with the help of jQuery, you can first of all generate the event। कौन से इवेंट पे आपको कोड लिखना है? जब मैं रिमूव बटन को क्लिक करूंगा तो इमेज से बॉर्डर नाम का क्लास रिमूव होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई फंक्शन नेम इज रिमूव क्लास। वेरी सिंपल, शुरू में ऐड होगा फिर बाद में रिमूव भी कर सकते। ओके, इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज इसका नाम है रिमूव बॉर्डर, और यहाँ पे हमने गलती से क्या डाल दिया, रिमूवर। तो वो करेक्ट कर लो, रिफ्रेश करो। दिस विल ऐड इट, दिस विल रिमूव इट। दिस इज हाउ यू कैन ऐड और रिमूव क्लास ऑन द फ्लाई with the help of jQuery add class and remove class functions. Now next one is toggle class। फिर अभी थोड़ा यूजर फ्रेंडली भी तो करना है। यूजर फ्रेंडली मतलब रिमूव करने के लिए स्पेशल बटन, ऐड करने के लिए स्पेशल बटन। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक ही बटन पे अगर वो एडेड है तो उसको रिमूव करो, अगर रिमूव है तो उसको ऐड करो। मतलब एक ही बटन पे दोनों ऑपरेशंस, है ना? तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सबसे पहले तो आपको एक बटन डालना है, उस बटन का नाम देना है ऐड और रिमूव। राइट, ऐड और रिमूव। अगर इस बटन को किसी ने क्लिक किया तो बॉर्डर नाम का क्लास टॉगल करो, टॉगल नाम का फंक्शन। टॉगल फंक्शन क्या करेगा, सिंपल, अगर इसको बॉर्डर नहीं है तो उसको वो ऐड कर देगा। अरे रिमूव व्हाट, सॉरी, इट इज नॉट टॉगल, इट इज टॉगल क्लास। टॉगल यानी वो हाइड कर देता है, हाइड शो। आपको मैंने वो भी फंक्शन पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर टॉगल नाम का फंक्शन है आपके पास। ये वाला टॉगल फंक्शन क्या करता है, हाइड शो करता है। राइट, इसलिए वो हाइड हो गया था। तो वही सोचो ये भाग किधर गया। ओके, यहाँ पे सिंपल वो क्या करेगा, टॉगल क्लास मतलब ये क्लास अगर एडेड है, अगर यहाँ पे बॉर्डर नाम का क्लास नहीं है तो वो ऐड कर देगा। अगर वहाँ पे बॉर्डर क्लास का नाम का क्लास है और उसी बटन को क्लिक किया तो वो रिमूव कर देगा। So this is your toggle class function. I hope you got the understanding till this point. I'm just going to stop the recording and we can discuss about your question.